تو صحیح ہے کہ فرشتے اللہ کے بغیر مرضی کے تو بارش نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتے بارش کر سکتے ہیں، تو پھر اشرف المخلوق یعنی انبیاء اور اولیاء تو اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو طاقت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے کہ وہ بارش کروا سکے۔ بارش کی ڈیوٹی بھائی فرشتوں کی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور کوئی نہیں، اس لیے انبیاء اولیاء بارش کرا سکتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر جب قحط پڑتا تو سیدنا عباس کو لے کر آئے اور ان سے دعا کرائی اور کہا کہ جب تک ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو ہم رسول اللہ کے پاس جاتے تھے دعا کرانے کے لیے۔ اب ہم حضرت عباس کو لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعا سے بارش نازل کر، اور وہ بارش ہوئی۔ حضرت عمر کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بغل میں موجود ہے، ہم جا کر رسول اللہ سے دعا کریں کہ آپ بارش کروا دیجئے؟ ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ ہمیں موجود نہیں ہے، تو اس لیے انبیاء اولیاء بارش کرا سکتے ہیں۔ جیسے دنیا سے جانے کے بعد نہ انبیاء مدد کرتے ہیں نہ اولیاء مدد کرتے ہیں، مدد صرف اور صرف میرا اللہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی کے زیر قدرت کوئی چیز اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ صرف اور صرف دنیا کا سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہے ہیں اور کوئی نہیں چلا رہا۔ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے بانٹ رکھی ہے، نہ کسی انبیاء کی ڈیوٹی ہے نہ کسی اولیاء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بارش برسائے یا آپ کی کوئی مصیبت کو حل کرے۔ منہ چھپا کر بولے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیجئے اور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کرائیے۔ آپ کے جیسے لوگ داڑھی رکھ کر ٹوپی لگا کر دین کا جنازہ نکالیں گے تو ہم جیسے مسلمان ہی پھر آپ کے لیے کھڑے ہوں گے نا کہ آپ کا رد کریں اور آپ کو صحیح بات بتائیں۔ حضرات ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ فیس بک کے دونوں بہت بڑے علامہ ہیں، یوٹیوب کے بھی بہت بڑے علامہ ہیں، اور انہوں نے مولانا سکندر وارثی صاحب قبلہ کی کلپ لے کر کے اور یہ کہا کہ اپنی ویڈیو لگا دی ساتھ میں، اور یہ کہا کہ دنیا سے جانے کے بعد میں چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے داڑھی ٹوپی رکھ کر کے اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کو جواب دینے کے لیے پھر ہم جیسے مسلمان کھڑے ہوں گے۔ تو بھیا اگر جواب دینے کا اتنا شوق ہے تو کبھی سامنے آ جاؤ، ہم تو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، مولانا سکندر وارثی صاحب کے سامنے آ جاؤ، ہم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے آ جاؤ، کبھی آؤ، کبھی ہمت بھی تو کرو۔ اگر آپ کے اندر مردانگی کا 1% بھی حصہ ہے تو آپ سامنے آؤ۔ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے؟ اور پھر مولانا سکندر وارثی صاحب قبلہ کے تعلق سے کلپ بنا کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ مولانا سکندر وارثی صاحب بالکل صاف کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، لیکن اس کے حکم سے، اس کی عطا سے فرشتے بھی بارش برساتے ہیں۔ لیکن یہ فیس بک کے ٹٹو کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد چاہے نبی ہو یا ولی ہو کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بے شک حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کا، پہلے میں وہ بتا دوں۔ آپ یہ رسالہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کا نام ہے الامن والولا، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ چاہے اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر وہ ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے الدولۃ المکیہ میں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ہم جو ولیوں سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم اس نیت سے نہیں مانگتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاور عطا فرمائی ہے، ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ ہم عطا ہی مانتے ہیں، ہم ذاتی طور پر نہیں مانتے۔ لیکن یہ اپنی جو ان کے دماغ کے اندر غلاظت ہے، ان فیس بک کے ٹٹو اور یوٹیوب کے ٹٹوؤں کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی غلاظت کو اہل سنت و جماعت جس کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے، اس پر یہ زبردستی تھوپنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد میں کوئی مددگار نہیں ہے اور بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک حوالہ اور دیتا ہوں۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بتائی، اور اصل میں مطالعہ ان کا کمزور ہے اور اتنا پڑھے لکھے۔ امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف جلد اس کی 7 ہے، حدیث نمبر 32,665 ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ امام ابن ابی شیبہ کون ہے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور امام داؤد کے بھی استاد ہیں، اور یہ بڑے ان 3 ائمہ کے تو استاد ہیں ہی، ان کے علاوہ دیگر ان کے بڑے سارے شاگرد ہیں۔ تو ان کی کتاب المصنف جلد اس کی 7 حدیث نمبر 32,665 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، اور بڑا سخت قحط تھا، یہ 18 ہجری کو پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 8 سال کے بعد۔ اتنا سخت قحط تھا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ اس کا نام بھی عام الرمضہ پڑ گیا، یعنی ہلاکت والا قحط۔
3 साल या कैद रहा, तफसीलात इसकी किताबों में हमें मिलती है। तो इतना सख्त कहत था कि लोग भुखमरी के शिकार हो गए, फाका कशी की नौबत आ गई, बड़ा परेशान थे सब लोग। तो एक शख्स, हदीस पाक में रज्जुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन शारीन हदीस जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी और इमाम बदरुद्दीन आइनी, इन्होंने लिखा है कि वो जो शख्स था वो हजरत बिलाल इब्न हारिस अल मुज़नी थे। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर गए। ये फेसबुक के जो टट्टू कह रहे हैं कि दुनिया से जाने के बाद में चाहे नबी हो या वली कोई भी मददगार नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूं। तो हजरत बिलाल इब्न हारिस अल मुज़नी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर पहुंचे, जाकर के कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत प्यासी है, आप अपनी उम्मत के लिए पानी तलब कीजिए। यहां पर दो बातें जहन में आती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद उनको या के साथ पुकारना ये भी जायज है। या के साथ पुकारना, जाकर के कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए पानी तलब कीजिए, उम्मत हलाक हो रही है। दूसरी चीज ये कि बाद विसाल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना, उनसे मदद मांगना, ये भी जायज है। और ये किसका तरीका है? ये सहाबी का तरीका है, वहाबी का तरीका नहीं है। पता है क्या लगा कि वहाबी अलग होते हैं और सहाबी अलग होते हैं। हम आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हम लोग रास्ते पर हैं। जो काम सहाबाए किराम क्या करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी रास्ते पर हम लोग हैं। तो उन्होंने जाकर के दुआ की कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए पानी तलब कीजिए, उम्मत हलाक हो रही है। उसके बाद वो आए, रात को सोए, महवे ख्वाब हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, आकर के कहा कि उमर से जाकर के हमारा सलाम कहना और उमर से कहना कि फिक्र ना करें, पानी उनको दिया जाएगा, और उमर से कहना कि बुर्दबारी इख्तियार करें। सुबह को ये हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे, जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे सारा मामला बताया रात का जो भी हुआ। उसके बाद में किताबों में लिखा है कि उस दिन इतनी बारिश पड़ी कि पूरा मदीना जलथल हो गया। फेसबुक के अल्लामा साहब क्या कह रहे थे, अभी आपने क्लिप सुनी, और रद्द किसका कर रहे हैं? मौलाना सिकंदर वारसी साहब का। बड़ा खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं हमने वीडियो बना दी तो हमने उनका रद्द कर दिया। अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तुम जैसे लोग रद्द करेंगे, तुम जैसे टट्टू फेसबुक के, तुम जैसे टट्टू रद्द करेंगे जिन्होंने कभी मदरसे की शक्ल भी नहीं देखी। बेटा होश के नाखून लो, होश के नाखून, समझ रहे हो? तो फिर किताबों में लिखा है कि उस दिन इतनी बारिश पड़ी कि पूरा मदीना जलथल हो गया। अब क्या पता लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद विसाल या के साथ पुकारना भी जायज है और उनसे दुआ करना, उनसे मदद मांगना ये भी जायज है। लेकिन सहाबी रसूल भी अगर अल्लाह के रसूल के रोजे पर पहुंच रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, तो वो भी ये अकीदा रख करके मांगते थे कि अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता की है। अताई मानते थे, जाती नहीं माना करते थे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अताई के ही कायल हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, अपने वलियों को ये चीजें अता की हैं कि वो अपने गुलामों की मदद करते हैं। अब इस हदीस पाक को कि कौन कौन अपनी अपनी किताब में लेकर के आए, मैं आपको भी बता देता हूं। इसी हदीस को इमाम तबरी ने अपनी तारीख तबरी में लिखा है, जिल्द 2 है, सफा नंबर 509 है। और इसी हदीस को इमाम बहक़ी ने अपनी दलाइलुन नबुव्वा में लिखा है, जिल्द 7 है, सफा नंबर 35 है, हदीस नंबर 3030 है। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख दमिश्क में लिखा है, जिल्द 44 है, सफा नंबर 345 है। इसी हदीस को इमाम इब्ने अब्दुल बर ने अपने अल इस्तिआम में लिखा है, जिल्द 3 है, सफा नंबर 1149 है। इसी हदीस को इमाम इब्ने असीर ने अपनी अल कामिल फी तारीख में लिखा है, जिल्द 2 है, सफा नंबर 597। इसी हदीस को इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी ने अपनी शिफाउ सक़ाम में लिखा है, सफा नंबर 381। इसी हदीस को इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा में लिखा है, जिल्द 6 है, सफा नंबर 164 है और रिजाल नंबर 8350 है। इसी हदीस को इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़त्हुल बारी जिल्द 2 सफा नंबर 575 हदीस नंबर 1010 पर लिखा है। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इसको लिखने के बाद में फरमाया कि यह हदीस सनद के एतबार से सही है। क्या फरमाया? इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इस हदीस को लिखा और लिखने के बाद में फरमाया कि यह हदीस सनद के एतबार से सही है। इसी हदीस को इमाम कुस्तलानी ने अपनी अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखा है, जिल्द 4 है, सफा नंबर 276 है। इसी हदीस को इमाम समहूदी ने अपनी वफाउल वफा में लिखा है, जिल्द 4 है, सफा नंबर 1374 है। इसी हदीस को साहिब कंजुल उम्मान ने अपनी कंजुल उम्मान में लिखा है, जिल्द 8 है, सफा नंबर 201 है, हदीस नंबर 23530 है।
इसी हदीस को इमाम जुर्कानी ने अपनी शरहुल मवाहिब में लिखा है, जिल्द 11 सफ़ा नंबर 150 है। इसी हदीस को हजरत अल्लामा मोहम्मद आबिद अंसारी ने अपनी अल तवस्सुल में लिखा है, सफ़ा नंबर 71 है। और खुद इब्ने तैमिया जो गैर मुकल्लिदों का बाप है, गैर मुकल्लिद उसको अपना बाप समझते हैं, खुद इब्ने तैमिया ने अपनी इक्तिसाद सिरातल मुस्तकीम में लिखा है, सफ़ा नंबर 374 है। इसी हदीस को इमाम इब्ने कसीर ने अपनी अल बिदाया व निहाया में लिखा है, जिल्द 7 है, सफ़ा नंबर 205 है। और आप भी लिखने के बाद में कहते हैं कि हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, ये हदीस सनद के एतबार से सही है। समझ रहे हैं आप, जो मैंने अभी आपको हदीस सुनाई। अब कह रहे हैं कि दुनिया से जाने के बाद में किसी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। फेसबुक के टट्टू यही तो कह रहे थे, मैंने आपको उसके ताल्लुक से हदीस बताई। आओ मैं और थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं। इसी अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा नंबर 43 पर लिखा हुआ है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त आपने जाहिरी दुनिया से पर्दा नहीं फरमाया था। तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब करके एक शख्स था, तो उसने अपने नबी होने का दावा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही, यानी उसने अपने नबी होने का दावा कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जंग का ऐलान किया, उसके कत्ल का हुक्म दिया। इससे पहले कि आप उससे जंग करते, आप जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे जंग की और उससे जंग करने के लिए निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा, हजरत खालिद इब्न वलीद, ये सब जंग करने के लिए निकले। तो हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तो आपका जो झंडा था वो हजरत खालिद इब्न वलीद ने संभाला। अब झंडा आपने संभाला, तो ये मैं नहीं कहता, ये हाफिज इब्ने कसीर के अल्फाज हैं और अल बिदाया व निहाया में लिखे हुए हैं, जिल्द 7 है, सफ़ा नंबर 43 है। आपने झंडा संभाला, झंडा संभालने के बाद में आपने एक नारा लगाया। वो नारा क्या था? सुम्मा नादा बिशियारिल मुस्लिमीन वकाना शियारुहुम यौमा इदिन या मुहम्मदा। यह हजरत खालिद इब्ने वलीद ने नारा लगाया। गज़वा यमामा हुई, गज़वा यमामा हो रही है, तो आपने नारा लगाया झंडा उठाने के बाद में। क्या नारा लगाया? सुम्मा नादा। फिर आपने नारा लगाया बिशियारिल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों का शियार बन चुका था, यानी मुसलमानों पर कोई परेशानी आती मुसलमानों पर कोई परेशानी आती तो आप ये नारा लगाया करते थे, यानी मुरब्बजा नारा था, नारा लगाया करते। नारा क्या था? या मुहम्मदा, यानी अल्लाह के रसूल आप हमारी मदद फरमाइए। अब आप देखें गज़वा यमामा हो कहाँ रही है और मदीना शरीफ कहाँ है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप हमारी मदद फरमाइए। कोई सहाबी कुफ्र का फतवा नहीं लगा रहा है, कोई सहाबी शिरक का फतवा नहीं लगा रहा है, कोई सहाबी नहीं कह रहा है कि काफिर होगा मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये फेसबुक के टट्टू, ये यूट्यूब के 2 दिन के टट्टू ये क्या कह रहे हैं कि साहब दुनिया से जाने के बाद में नबियों से भी मदद मत मांगो, वलियों से भी मदद मत मांगो, कोई मददगार नहीं। अरे बेटा, हकीकी मददगार अल्लाह तबारक व तआला ही है, हम भी यही कहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की अता से अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी मददगार हैं, वली भी मददगार हैं अल्लाह ताला की अता से। हम अल्लाह ताला की अता के बगैर के बिल्कुल कायल नहीं है, अल्लाह ताला की अता से ही हम लोग भी मानते हैं। लोगों को गुमराह करना बंद करो, लोगों को गुमराह खुद कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही इल्म आगे तक फैलाने का शौक है तो बेटा पहले जाओ मदरसा, जाकर के एडमिशन लो और वहां पर बैठ करके तालीम हासिल करो। 8-9 साल 10 साल बच्चा पढ़ता है, तब लास्ट ईयर में बुखारी शरीफ उसके हाथ में दी जाती है, जो बुखारी शरीफ टट्टू पढ़ रहे हैं, जो आलिम को आखिरी साल में दी जाती है, यानी 8-9 साल पढ़ने के बाद में लास्ट ईयर में बुखारी शरीफ हाथ में आती है। और ये फेसबुक के टट्टू, इन्होंने कभी मदरसे की सूरत नहीं देखी, अरबी ग्रामर से ये वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन ये बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं। बुखारी शरीफ क्या रद्दी का टुकड़ा थोड़ी है, बुखारी शरीफ कोई हलवा थोड़ी है जो तुम लोग पढ़ रहे हो बेटा। इसलिए लोगों को गुमराह करना बंद करो, खुद तुम गुमराह कर रहे हो और मौलाना सिकंदर साहब पे तुम जो है तानाजनी कर रहे हो, उन पे जबान जो है दराज कर रहे हो। तुम लोग शर्म करो, अच्छा अकल हासिल करो और होश के नाखून लो। बहुत बुरी बात है। मैंने आपको 2 जगह हवाला दिया कि हजरत इमाम इब्ने अबी शैबा की किताब अल मुसन्नफ से भी मैंने आपको हवाला दिया। हजरत मालिक उद्दार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी इस हदीस के, जो मैंने आपको बताया कि हजरत बिलाल इब्ने हारिस सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रोजे पर पहुंचे, वहां पर जाकर के उम्मत के लिए दुआ फरमाई कि या रसूल अल्लाह आप उम्मत के लिए पानी तलब कीजिए। दूसरा मैंने आपको हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से भी बताया कि आपने झंडा संभाला गज़वा यमामा के मौके पर और आपने फरमाया कि या मुहम्मदा, अल्लाह के रसूल आप हमारी मदद फरमाइए।
किसी ने भी इनके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं दिया, शिर्क का फतवा नहीं दिया। तो अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं या हम उनसे दुआ करते हैं, तो हम जो दुआ कर रहे हैं, हम मदद मांग रहे हैं, हम जो मदद मांग रहे हैं, हम यही सोच के मांगते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको ये पावर अता की है, हम उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सहाबा किराम का तरीका है। उम्मीद करता हूं कि नाज़रीन इकराम आपकी समझ में बात आई होगी। इससे कबल अभी मेरी एक वीडियो हो रही थी इन्हीं फेसबुक के टट्टुओं के ऊपर, तो कुछ बेवकूफ किस्म के हजरात, असल में ये लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं बेचारे, ये यूट्यूब से फेसबुक पे से थोड़ा बहुत इल्म सीख करके ये सोचते हैं बहुत बड़े अल्लामा बन गए, तो वहां पर आकर के मेरे साथ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। बहरहाल मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आकर के वहां पे वायद पेश कर रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। बेटा इस आयत का पहले मतलब समझो और तफसीर देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ इस आयत का मतलब क्या है। उसके बाद में आकर के ज्ञान दिया करो। समझ रहे हो आप, हमें सब पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस आयत का मतलब क्या है, और हम जो बोलते हैं पहले तोलते हैं, बात को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको हक कहने की, हक सुनने की और हक सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।